Hello guys, I'm Vinod Bhambu, and I welcome you all in my channel International English. So learn the international level of English. I taught you one topic last time, that was self-introduction, and today I'm going to teach you second topic. Today topic is tense. Actually, we have learned a lot about tenses in our 10th standard, but we have forgotten about those things because we passed our 10th class before a long time, and we never ever tried to learn or try to understand the tenses once again. But my dear friends, tense is most important if you are preparing yourself for government job examination of English, and if you are preparing yourself for going to abroad, and I mean to say for speaking English for IELTS. So in both things, this tense is most important. So first of all, I would like to tell you that what does tense suggest us. Actually, tense suggests us time and work, that what time work was done. So this is tense, and we know that tense has three types. Which are the types of tense? It is very simple, it is very easy. There is past tense, present tense, and future tense. And each and every part of tense has every tense has four parts. So what are the four parts? These four parts are indefinite, continuous, perfect, and fourth one is perfect continuous. Actually, this is basic of tenses. This is basic of tenses. We know about this thing, that there are three tenses. First is there is past tense, present tense, future tense, and every part of and every tense has four parts. There is indefinite, there is continuous, there is perfect, there is perfect continuous. So I will teach you only one tense today, and only one part of a tense. So that is the part of past, and which is the part that is past indefinite. I will teach you today past indefinite. I will teach you that what is the identification, how to identify a sentence, that this sentence belongs to past indefinite, and what is the formula of past indefinite, and what is the helping verb which is used in past indefinite. So let's start past indefinite tense. So past indefinite tense, what is formula of past indefinite tense? First of all, I would like to tell you the formula, or the pattern is subject plus verb second plus object in affirmative sentences. Affirmative sentences means positive sentences, and if I talk about interrogative sentence, then there will be did,
plus subject plus verb first plus object plus question mark, and one sentence will be there, subject plus verb second plus subject plus did plus not plus verb first plus object. So this is the formula of simple past tense. So dear friends, this is the formula of past indefinite tense. Now let us start with examples. Let me give you some examples of past indefinite tense. Example first. Now I will have to speak some Hindi also for making you understand. Actually ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता. हिंदी मेरी मातृभाषा है और हिंदी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं हिंदी इसलिए नहीं बोलता हूँ अपने सेशंस में. इंग्लिश टू इंग्लिश सेशंस इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग जो ये सेशंस की जो इंग्लिश है, जो 10 मिनट की 5 मिनट की जो इंग्लिश है, उसको आप अच्छे तरह से समझें और ट्राई करें उसको फिर रिपीट करने के लिए, तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. और हिंदी आज इसलिए यहाँ पे बोलना ज़रूरी है क्योंकि जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं, हिंदी के वाक्य हैं, उन वाक्यों में आप कैसे पहचान करें कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. तो माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी के वाक्यों में लास्ट में क्या होता है, अगर हम पहचान की बात करें, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता है. पास्ट है इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पास्ट का मतलब गया था, खाया था, पिया था, सोया था, आया था. नो. पास्ट इंडेफिनिट में गया, आया, खाया, पिया, सोया, लाइक दैट, इस तरह से आपको वाक्य के अंत में मिलेगा. लाइक गया, आया, खाया, लाइक दैट. सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, राम स्कूल गया, तो हमने यहां पे देखा था कि क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट. अब राम की इंग्लिश तो राम रहेगी, स्कूल की इंग्लिश स्कूल रहेगी, गया मतलब जाना होता है इंग्लिश में गो, और वो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट. तो सेंटेंस क्या होगा, राम वेंट टू स्कूल. इजी, वेरी इजी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है. राम वेंट टू स्कूल. अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. क्या राम स्कूल गया? अब इंटेरोगेटिव में देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अब डिड तो हम यहां पे लगाएंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम. तो वर्ब फर्स्ट क्या है, गो टू स्कूल. क्या राम स्कूल गया, ये बन गया पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट. सो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की. सो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव की बात करें तो राम स्कूल नहीं गया. अब इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस
डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट क्या था? फर्स्ट फॉर्म क्या थी? गो। ऑब्जेक्ट टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। वेरी इजी। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, लेकिन इतना समझ लेने से आप सिंपल पास्ट में अगर आप सिंपल पास्ट ये सोचते हैं कि मैंने सिंपल पास्ट टेंस सीख लिया है, तो आप सही सोचते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस की पहचान करना एक थोड़ा सा टफ कार्य है। जब आप अपने किसी एग्ज़ाम में, पेपर में या फिर कहीं भी ये क्वेश्चन में कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो उस टाइम आंसर देते हैं। तो अब मैं आपको कुछ एक एक्सरसाइजेज बताऊंगा। उन एक्सरसाइजेज में, जैसे कि आप कल को गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, व्हाट विल यू फाइंड? आपको सेंटेंसेस कैसे मिलेंगे आपके जो एग्जाम्स होंगे, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। आपको सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एटसेट्रा मिलेगा, या फिर डिड भी हो सकता है। अब वो ये कहाँ मिलेंगे, कैसे होगा, आई विल टेल यू इन ब्रीफ। सो फ्रेंड्स, यू विल फाइंड द सेंटेंसेस लाइक दिस: सीता ब्लैंक्स टू टेम्पल यस्टरडे। अब आपको क्या देखना होगा उस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में आपको एक तो ये देखना होगा कि यहाँ पर यस्टरडे की बात हो रही है। यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे का मतलब कल, यानी बीता हुआ कल। और यहाँ पे फॉर्म दी हुई है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो दी हुई है दैट इज गो। तो सीता मंदिर गई कल। तो आपको देखना होगा कि यस्टरडे है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा फॉर्म ऑफ वर्ब हमें लगानी है, दैट विल बी द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी ये जो सेंटेंस है दिस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर हम गो क्या लगाएंगे? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। सीता वेंट टू टेम्पल यस्टरडे। राजपाल ब्लैंक्स लूडो लास्ट संडे। कि राजपाल और यहाँ पे हमें ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो दी हुई है प्ले। कि राजपाल ब्लैंक्स लूडो लास्ट संडे। कि तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये सिंपल पास्ट का है? लास्ट संडे, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो प्ले की सेकंड फॉर्म हम यहां पे लगाएंगे, दैट इज प्लेड। दैट इज प्लेड। सुमन ब्लैंक्स फॉर एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। और फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यहां पर दी गई है प्रिपेयर। तो हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर का मतलब यहां पर ये सिंपल पास्ट का टेंस है, और हम इसे प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड। यू ब्लैंक्स पूजा प्रीवियस मंथ मीट। और हमें ये देखना होगा इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, सो दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें इसमें क्या करना होगा? इसमें हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, अब हम इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या था? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले क्या लगेगा? डिड। यू वर्ब फर्स्ट क्या है? मीट। डिड यू मीट पूजा प्रीवियस मंथ। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, दैट इज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल नंबर 5। एक्चुअली
थोड़ा सा मैं इस वाइट बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ और क्लीन करने के बाद आपको ये इंटरोगेट। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस विल बी लाइक दिस: अभिमन्यु ब्लैंक्स क्रिकेट यस्टरडे, एंड इन द ब्रैकेट इट विल बी गिवन नोट प्ले। सो हमें ये देखना होगा कि यस्टरडे अगर इसमें है तो ये पास्ट का है, जो सेंटेंस है दैट बिलोंग्स टू पास्ट, और इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और इसमें ना कोई हैड का प्रयोग है, ना वाज वर का प्रयोग है, तो ये पास्ट सिंपल है। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम नोट प्ले सीधा नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिड नॉट प्ले। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं, कुछ नए सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन सेंटेंसेस से फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आप ज़रूर प्रिपेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एक्चुअली सेशन थोड़ा सा लंबा खींच लिया, मैं इसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं पूरा कंप्लीटली आपको बताना चाहता था। तो अगर कोई इस वीडियो में, इस टॉपिक में कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं है कि मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकती, मिस्टेक हो सकती है, एवरीवन डज मिस्टेक। सो thank you very much for watching video. Please subscribe my channel and please like my videos.